Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 2 subject English chapter 3 part 1 reading. My name is Huria Fayaz and I am your English teacher. Now let's start chapter 3 of your midterm syllabus. Take out your books and open page number 44. Unit 3 An accident at home. This unit is about an accident which happened at home. There are some characters in this unit and through these characters we will know that carelessness can harm you. Accident, हादसा. Home, घर. An accident at home, घर पर एक हादसा. Ahmed and I were watching television. अहमद और मैं टीवी देख रहे थे. Watching देख रहे थे. Ahmed's books, toys and shoes were all over the floor. अहमद की किताबें, खिलौने और जूते ज़मीन के इर्द गिर्द पड़े थे. Please pick your things up. बराए मेहरबानी अपनी चीज़ें उठाओ. Pick means उठाना. Said the elder sister Ramin. रामीन बड़ी बहन ने कहा. Someone could trip over. कोई इस पर फिसल सकता है. Trip means फिसलना. अहमद said. अहमद ने कहा Yes, I will. जी हाँ मैं कर लूँगा. But he did not move from the sofa. लेकिन उसने सोफे से कोई हरकत नहीं की. Move हरकत. रामीन was going out. रामीन बाहर जा रही थी. Out means बाहर. As she left, जैसे ही वो गई, she called, उसने कहा, अहमद, pick up your things now. अहमद, अभी अपनी चीज़ें उठाओ. Now means अभी. I will do it in a minute. मैं ये 1 मिनट में कर लूँगा. Said अहमद. अहमद ने कहा. I looked at his shoes but did not pick them up. मैंने उसके जूतों को देखा, लेकिन उसने नहीं उठाए. Looked देखा. I wish I had. काश मैं ऐसा कर लेती. We were still watching television when grandfather came in. हम अभी तक टीवी देख रहे थे जब दादा जान अंदर आए. Came in अंदर आए. Can I join you? क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? He asked. उन्होंने पूछा. Asked mean पूछा. On the next page, page number 45. Yes, please. जी हाँ, बराए मेहरबानी. I said. मैंने कहा. I love it when grandfather watches television with us. मुझे पसंद है जब दादा जान हमारे साथ टीवी देखते हैं. As he walked across the room. जैसे ही वो कमरे में आए, he tripped. फिसल गए. Tripped means फिसल गए. He tripped over Ahmed's shoes. वो अहमद के जूते पर फिसल गए. And went crashing to the floor. और ज़मीन पर गिर गए. Crashing गिरना, floor ज़मीन. अहमद and I went to help him. अहमद और मैं उनकी मदद के लिए गए. But he was not able to stand up. But वो खड़े होने के काबिल नहीं थे. So we called our father. हमने अपने अब्बू को बुलाया. Poor grandfather had twisted his ankle. बेचारे दादा जान का टखना मुड़ गया था. Ankle means टखना. Twisted मुड़ जाना. For the next week, अगले हफ्ते के लिए. He had to use a stick to help him walk. अब दादा जान को चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना था. अहमद and I looked after him. अहमद और मैंने उनकी देखभाल की. But we both felt awful. लेकिन हम दोनों को बुरा महसूस हो रहा था. We felt that the accident was our fault. हमें महसूस हुआ कि ये हादसा हमारी गलती थी. Fault गलती. Awful बुरा. Our father was really upset. हमारे अब्बू बहुत परेशान थे. And we promised that we would clear up our stuff in future.
और हमने वादा किया कि हम मुस्तकबिल में अपनी तमाम चीज़ें साफ रखेंगे। फ्यूचर मुस्तकबिल। We did not realize that a messy floor could hurt someone. हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक गंदा फ्लोर या गंदा फर्श किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। Come to the dictionary. My dictionary. Words, meanings. Trip. To hit your foot against something and fall. Crash. Run into. Twist. To turn sharply. On the next page, page number 46. Awful. Unpleasant. Bad. Messy. Untidy. Look at page number 47. Exercise 2. Find the action words from the sentences and write them. In this exercise, we will write action words in these blocks. Action words. Action word means when we act something is called action. जब भी हम कोई काम करते हैं उसे कहते हैं एक्शन। ए. अस्मा रीड्स द बुक। अस्मा किताब पढ़ती है। पढ़ना इज एन एक्शन। रीड्स पढ़ना। इट मीन्स कि रीड्स हमारे पास यहाँ एक्शन वर्ड है। सो राइट रीड्स इन दिस ब्लॉक। बी. रेहान ईट्स एप्पल। ईट्स खाना। राइट ईट्स इन दिस ब्लॉक। सी. ही जम्प्स ओवर द रोप। जम्प्स छलांग लगाना। राइट जम्प इन दिस ब्लॉक। डी. शी राइट्स हर नेम। राइट्स लिखना। इस ब्लॉक में लिखेंगे राइट। ई. दे प्ले इन द पार्क। प्ले खेलना। राइट प्ले इन दिस ब्लॉक। एफ. माहीन ड्रिंक्स वाटर। ड्रिंक्स पीना। राइट ड्रिंक्स। जी. शुएब स्मेल्स द फ्लावर। स्मेल्स मतलब सूंघना। Right, smells. Now look at page number 48. Singular and plural. वाहिद और जमा. 4. Match these irregular nouns with their plurals. इसमें हम irregular noun को उसकी जमा के साथ join करेंगे. Singular, plural. First of all, you have to know what are irregular nouns. जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिसकी जमा में हम यानी उसके प्लूरल में हम एस, ई एस और आई ई एस लगाते हैं, जबकि इर्रेगुलर नाउन्स जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। लाइक वोमेन। वोमेन का प्लूरल हमारे पास यहाँ पे है विमेन। WOMEN। यहाँ पे स्पेलिंग में फ़र्क आया है। यहाँ पे हमने विमेन में ए यूज़ किया है और इसके प्लूरल में ई यूज़ किया है। नंबर 2, घूस। इसका मतलब है हंस। ये एक परिंदे का नाम है। घूस को हम ज्वाइन करेंगे घीस के साथ। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। डबल ओ हमने हटाकर डबल ई यूज़ किया है। फुट। फुट की स्पेलिंग यहाँ पर चेंज हो गई है। फीट, FEET। डियर। डियर का प्लूरल हमने डियर लिखा है। डियर की स्पेलिंग चेंज नहीं होती। चाइल्ड। चाइल्ड की स्पेलिंग में हमने ऐड किया है REN, चिल्ड्रन। टूथ। टूथ की स्पेलिंग प्लूरल में चेंज हुई है। TEETH, टीथ। ओपन पेज नंबर 49.
In this exercise, we are going to fill in the blanks with the correct spelling. Read each sentence, use double E or EA to fill each gap. हम इन सारे सेंटेंसेस को, इन जुमलों को पढ़ेंगे और इनमें डबल ई और EA का इस्तेमाल करेंगे. ई, डबल ई और EA की एक ही साउंड है. जैसे यहाँ पर वर्ड है ग्रीन. ग्रीन में ई की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है. तो हम ब्लैंक्स को करेक्ट स्पेलिंग के साथ फिल करेंगे. ए, लीव्स आर ग्रीन. लीव्स ग्रीन है. ग्रीन की स्पेलिंग क्या है? GREEN. हम यहाँ पे EA लिख सकते थे, लेकिन वी नो ग्रीन की स्पेलिंग क्या है? GREEN. तो हम इसमें करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे. B. Let's dash some sandwiches. इस ब्लैंक में लिखेंगे EA. Let's eat. C. Father brought some ice cream. इस ब्लैंक में हमने लिखा है EA. Ice cream. D. Go to sleep in the shade of the mango tree. इन दोनों ब्लैंक्स में हमने डबल ई लिखा है, sleep and tree. E. I hope you like to eat sweet things. इसमें हमने डबल ई लिखा है. F. My sister is dear to me. इस ब्लैंक में हमने EA यूज़ किया है. एक डियर होता है हिरन, उसकी स्पेलिंग होती है DEER और ये डियर है EA. इसका मतलब है अजीज़. This is the end of part 1, reading and book exercises. We will do our next part in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.